خوش قسمتی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایک عظیم مذہبی اسکالر اور جنہیں نوجوان دلوں کی دھڑکن بھی کہا جاتا ہے. میری مراد عظیم مذہبی اسکالر فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری فیصل ندیم کلانی صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے قبلہ قاری صاحب وہ ہے توبہ. توبہ کیا ہے اور توبہ کے دروازے کب تک جو ہیں ایک مسلمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. دوا کی تلاش میں رہا سبحان اللہ. دعا کو چھوڑ کر اللہ اکبر. میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. ہائے حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال. جی ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. حمد و ثنا اسی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام بحضور سرور کونین نبی الحرمین خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد انتہائی قابل تکریم قبلہ حافظ محمد واصف علی واصف صاحب، میں سب سے پہلے 110 نیوز کی جملہ ٹیم آپ کے تمام اراکین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت اور احسن اقدام پر جو قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں لوگ دیگر ایکٹیویسٹ میں شریک ہیں، دیگر نشوں میں مبتلا ہیں، کوئی سرچ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ لانچ کر رہا ہے. آپ نے اس پرفتن دور میں عشق رسول، ختم نبوت، توبہ اور دیگر مذہبی تہوار کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جو خوبصورت ترین اقدام اٹھایا، میں اس پرفتن دور میں جو آپ کا یہ خوبصورت جہاد ہے اور یہ خوبصورت جو اقدام ہے، نہ صرف اس کو سراہتا ہوں، آپ کو سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹیم کو اور آپ کو اس مقصد میں، جس مقصد کے لیے آپ نے اس 110 نیوز کو لانچ کیا ہے، آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. دوسری بات، آپ نے جو آج کا مضمون خوبصورت ترین سوال اور آج کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج کل جو آخری عشرہ خوبصورت نورانی پاکیزہ مبارک مطہر منور عشرہ گزر رہا ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی توبہ کے ایام بھی ہیں، قرآن کریم کے نزول کے ایام بھی ہیں، ماحول بھی بنا ہے، گراؤنڈ بھی بنی ہوئی ہے، دل بھی جھکے ہوئے ہیں. توبہ کے لیے آج سب کی نظریں رب تعالیٰ کے حضور لگی ہوئی ہیں. آخری عشرے کا فیضان تو ہے ہی، مگر ماحول جس طرح کا بنا ہوا ہے کرونا کی فضا سے، جس طرح دل توبہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں اہم موضوع ہے. توبہ کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر ندامت کے ساتھ رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں. یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حسی طور پر، قلبی طور پر، فعلی طور پر، نہ صرف زبان کے ساتھ، یعنی قولاً فعلاً عملاً رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کی ندامت پر رب تعالیٰ کے حضور عرض و معروض کرنا، اس کو شریعت میں توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ پہلے تو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو توبہ اس طرح کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی پکی نصوحا، پکی توبہ کرو. آج توڑ دو، کل توڑ دو، یہ کر لو، فارمیلٹیاں پوری نہ کرو. توبہ کے ساتھ، پکے استقامت، عزم و استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو تم معاہدہ اپنے رب سے کر رہے ہو، کمٹمنٹ کر رہے ہو، پھر اس پہ قائم رہو. تو توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں اور توبہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کا یہ خوبصورت 5واں پارہ ہے اور پنجتن پاک کے امام کی بات بھی ہے اور یہ اشرا قرآن کا بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
रसूल सुभान अल्लाह। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सुभान देख ले आदम अलैहिस्सलाम 350 साल रोते रहे, आपकी आंखों मुबारकों के नीचे आंसू बह बह के हल्के बन गए, घास ऊपर निकल गया, कद मुबारक से 60 हाथ आपका कद मुबारक था और 7 हाथ आपकी चौड़ाई थी कंधों की, इतने बड़े थे आदम अलैहिस्सलाम कद क़ामत के एतबार से। और मैंने ये तफसीर बुखारी शरीफ की जो है ना तशरीहात तौज़ीहात में ये पढ़ा हुआ है कि जो ही कौमें आगे चलती नहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता कद कम होता रहा, और जैसे जैसे कद कम होते रहे वैसे वैसे ही हालात के तनाजुर में आज तक ये कद क़ामत का मुआमला। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम आपने रब ताला की बारगाह में कई हजार मरतबा इस्तिग़फ़ार तो किया होगा, अपने रब को मनाने की कोशिश की होगी, सजदे किए होंगे, मगर जब काम ना बना तो फिर आप फरमाते हैं रफ़ातु रासी मुस्तदरक लिल हाकिम, मेरे पास जैनवन किताब मौजूद है, 9 जिल्दें हैं, बैरूत की छपी हुई, रावी हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मुख्तलिफ कुरान पाक की तफसीर में भी ये जो है ना हदीस पाक मौजूद है, मगर मैं मुस्तदरिक से पढ़ रहा हूं, हाकिम ने इसे मुस्तदरिक में नकल किया, सहीहैन की शराइत पर ये हदीस को कोट करते हैं, और ये अहले इल्म के लिए और अरबाब इल्म के लिए ये बहुत बड़ी दलील है। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, आप कहते हैं, वो एक लंबी हदीस पाक में आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रफ़ातु रासी, जब मैंने आसमान की तरफ चेहरे को उठाया, नज़रतु इलस समा, मैंने सर को उठाया और आसमान के किनारों को देखा, और मैंने अर्श आज़म के किनारों को देखा, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार पैदा नहीं हुए, मगर न जमी थी, न जमा था, न मकी थे, न मका था, न चुनी थे, न चना था। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी थे जब कुछ भी नहीं था, जब आदम भी नहीं थे, वजूद आदम भी नहीं था, पानी और मिट्टी के दरमियान भी नहीं थे, मेरे नबी तो तब भी थे, मगर मेरे नबी का नाम अर्श आज़म के किनारों पर जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं इस नामे नामी के वसीला पाक से, लफ्ज हैं इस नामे नामी के वसीला पाक से, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया आदम तूने आज सिर्फ अपने लिए मांगी है, मेरे महबूब के वसीले से मांगता तो मैं तेरी सारी औलाद को ही माफ फरमा देता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तौबा आपका दिल ना लग रहा हो कि मेरी पता नहीं कबूल है कि नहीं, तो हुजूर के वसीले से मांगो तो कबूल ही कबूल है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आप अपने रब के साथ मन की सफाई के साथ जाएं, अपने रब के हुजूर जाएं, आपका अपने रब से ताल्लुक है, लोगों से ताल्लुक नहीं है। तौबा का ताल्लुक रब से है, दिल का लगाव रब से है, मालिक से है, परवरदिगार और खालिक से है, लोगों से नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोगों को छोड़ दीजिए। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़े, अल्लाह ने जिस तरह मैंने पहले आयत पढ़ी है, कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ आओ ना मेरे महबूब के दरवाजे पर, जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तौबा की नीयत के साथ आओ, मोहब्बत से आओ, इश्क से आओ, वफा से आओ। वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और है। तो मेरे महबूब के दरवाजे पे आओ तो होगा क्या, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगो। अब कुरान कह रहा है अल्लाह से बख्शिश मांगो, सजदा अल्लाह की बारगाह में करो, नमाज अल्लाह की बार, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको कोई गारंटी नहीं है कबूल है कि नहीं, कबूल अल्लाह का मामला है, आपके दिल का मामला है। आप अगर इत्मीनान क़ल्ब है तो आप उम्मीद कर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए, तो अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। तो फरमाया फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मांगो। तो जब मांगनी अल्लाह से थी तो फिर जहां कहीं भी मांग लेते। फरमाया जब तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब ना हो, तुम्हारी तौबा कबूल है कि नहीं, फिर आओ मेरे महबूब के दरवाजे पर, अल्लाह से बख्शिश मांगो, मांगो अल्लाह से, मगर वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरे महबूब के लब हिल गए तो समझ लो तुम्हारी बख्शिश हो गई, फिर तुम्हारे लिए सनद हो गई, गारंटी हो गई है। तो हजूर अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक की तरफ जाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो मुसलमानों को एजाज कितना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नदम तौबा, ये जो शर्मिंदगी है ना, गुनाह करके जो शर्मिंदगी है, ये भी तौबा है। अल्लाह ताला इससे भी मुआफी अता फरमा देता है। और नाज़रीन के लिए ये हदीस पाक तो सोने के हुरूफ के साथ भी लिखें तो सोने की क्या औकात है। मेरे आका के लफ्ज़ हैं, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप आंसू बहा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, महबूब क्यों रोए हो? फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी उम्मत के गुनाहों की मुआफी
कैसे होगी। अल्लाह। फरमाया, अर्ज की महबूब आप का रब कहता है आपकी उम्मत में से किसी ने मरने से 1 साल पहले तौबा की तो कबूल है। जी। नबी इस्लाम फरमाते हैं अस्साना तो तवील, 1 साल तो बहुत लंबा हाय, है, हाय। मेरी तो गुलामों की उम्र ही बड़ी कम है, 1 साल तो बड़ा लंबा है। लाभ लाभ होगा, दुनिया होगी, सोशल मीडिया होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, प्रिंट मीडिया होगा, अपने बच्चों की रोजी रोटी के मामले होंगे, दुकानों के होंगे, मेरे गुलामों के लिए मैं रहमत कौनैन बनकर आया हूं। कोई आसानी की बात आए तो सही, कोई मेरे हुजूर की बारगाह में आए, कोई रब की बारगाह में आए, कोई झुकने वाला प्यार वाला दिल तो लेकर आए। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लंबा है। जिब्रील फिर गए, फिर तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं महबूब जिसने मरने से 1 महीना पहले तौबा की उसकी कबूल है। हजरत जिब्रील अमीन जब वापस आकर अर्ज करते हैं, मेरे महबूब फरमाते हैं अशहरुल उम्मती कसीर, फरमाया 1 महीना भी बड़ा लंबा है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर महीना भी लंबा, फिर वापस चले गए, फिर वापस आए। महबूब जो मरने से 1 दिन पहले तौबा करे फिर भी तौबा कबूल है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 1 दिन भी बहुत लंबा है, अल यौम लि उम्मती कसीर, ये भी मेरी उम्मत के लिए लंबा है। जिब्रील फिर गए, फिर आए, अर्ज की महबूब जब उसका नुतक मुश्किल हो जाए, बोलना मुश्किल हो जाए, आंखें ताड़ों में चली जाएं और जुबान खींच ली जाए, महबूब आपके गुलाम का ताल्लुक आपसे हो, रिश्ता आपसे हो, निस्बत आपसे हो, तौबा की सच्ची नीयत हो, उसका दिल उस वक्त भी नादम हो जाए, रब ताला फरमाता है मुस्तफा के सदके उसकी तौबा भी कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये तौबा के दरवाजे तो खुले हैं, सूरज मगरब से निकलने से पहले तक, सूर फूकने से पहले तक, कयामत की सुबह से पहले तक दरवाजे खुले हुए हैं गुलामों के लिए। गुलामों को आना चाहिए। आखिरी हदीस पाक सही मुस्लिम से मैं पढ़ देता हूँ। कई मर्तबा कई बंदे बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, फिर मुआशरे में बचते हैं, हमारे से मुआशरे में पले हैं, बड़े हैं, देखे हमने, फिर लोग कहते हैं पिछली उम्र बड़ा अजी बन गया, बड़ा नमाजी बन गए। तो किसी की तौबा को हम चैलेंज करते हैं, फिर हम उसका मजा उड़ाते हैं, फिर हम उसके दिल को शिकस्ता करते हैं, तोड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा मस्जिद में आ जाए कोई नमाज पढ़ने के लिए, कभी उसे ना देखा हो तो लोग उसे भी हकीर नजरों से देखते हैं, लोग ये भी आ जाए। हाँ नहीं, ये तो उसका और अल्लाह का मामला है, उसका और अल्लाह का मामला है। तो हजरत बुरैदा इस हदीस पाक के रावी हैं, वो कहते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस पाक है, इसमें से कई एक मसाइल भी आएंगे, आपका वक्त भी लिमिटेड होता है, तो मैं आखिरी लफ्ज जल्दी से कह देता हूँ। अल्फाज अरबी के मैं पहले भी इसलिए नहीं पढ़ रहा था। तो हजरत माइज इब्न मालिक बड़े मारूफ सहाबी हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं ताहिरनी, ये एक जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, हुजूर मुझे पाक कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, से कह रहे हैं, हाँ आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, हुजूर मुझे सही मुस्लिम, मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं फीमा उतहिरो का, किस चीज में तुझे पाक करूं। तो पहले अर्ज की मुझे पाक कीजिए, फिर अर्ज की मुझे पाक कीजिए, फिर अर्ज की मुझे पाक। जब 3 बार अर्ज कर ली ना, चौथी बार हुजूर ने फरमाया किस चीज में तुझे पाक करूं। अर्ज करते हैं मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसके करने से हाथ वाजिब हो जाती है। नाज़रीन सुनिएगा जरा हदीस पाक, जो आज हमारी तौबा के जज्बों को पाश करते हैं ना, उन कमीनों को अपने इल्म पे नाज होगा, हमें उसके करम पे नाज, हमें उसके फजल पे नाज है। ना अपनी नमाजों पे नाज है, ना सजदों पे नाज है, ना रोजों पे नाज है, ना न्याजों पे नाज है, हमें नाज है तो रहमत कौनैन की निस्बत पे नाज है। जरा ये फैजान देखिएगा तौबा का। मेरे आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर मैंने ऐसा गुनाह किया हाद वाजिब। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से सूंघो, ये मेरी बारगाह में खड़े होकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कहीं शराब तो नहीं पी, अशरीबा खमरा, शराब तो नहीं पी इन्होंने, कहीं इन्होंने, इनका दिमाग तो ठीक है, इनका जरा आप सारे अवारिस मालूम करो। तो जब सारे अवारिस मालूम किए गए अर्ज की हुजूर बिल्कुल इनका दिमाग भी असली हालत पे है, शराब भी नहीं पी, कोई ऐसा मामला नहीं जो हवास बाख्तगी पर दलालत करे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तूने ऐसा किया है, ऐसा किया। मेरे नबी एक काजी भी हैं, मेरे नबी एक जज भी हैं, ऐसे जज भी मेरे नबी फैसले करते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन भी हैं और जज भी हैं। मेरे नबी का फैसला करना, सजा देना, सजा दिलाना, सजा के फैसले को नाफिज करना, यह भी रहमत कौनैन की रहमत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको जरा हद लगाओ। तो वो शादीशुदा थे, जमीन में गाड़ के जब उनको हद लगाई गई तो उससे उनका विसाल हो गया, उनकी नमाज जनाजा पड़ी गई। लफ्ज़ हैं ये मुस्लिम के, नाजरीन के लिए मैं सही मुस्लिम, हाफिज साहब मैं ये हदीस पाक आप जब कहें मैं किताब यूं आपके सामने कर दूं, सही मुस्लिम कदीमी कुतुबखाना की छपी हुई, मैं मिशकात से भी पढ़ रहा हूँ, मिशकात में ये 339 339 पेज है। तो हजरत माइज इब्ने मालिक का जब
विसाल हो गया तो दूसरे दिन लाबिसु यौमैन व सलासता यौम, जी। हजूर अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उनके घर गए, विसाल से दूसरे दिन जी। या तीसरे दिन, विसाल से तीसरे दिन, दूसरे दिन जाएं तब भी कुल बनते हैं, तीसरे दिन जाएं तब भी कुल बनते हैं। तो मेरे नबी उस अपने आशिक के घर गए तो लोगों ने कहा देखो कैसी मौत मरे हैं, देखो कैसे गए हैं, हद लगी है उन पे, जना की हद है। तो ये आज इनके लिए दुआएं हो रही हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया फस्तगफिरू लिअखी, अपने भाई के लिए हाथ खड़े करके दुआएं मांगो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मुस्लिम के लफ्ज दिखाता हूँ, हजूर ने फरमाया दुआ मांगो। तो सब ने दुआ मांगी तो लोगों ने ची में गोइयां किया, किसी ने इधर कान जोड़ा, किसी ने इधर, आशिकों ने नहीं मुनाफिकों ने कान जोड़े कि ये कैसे गया है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी जुमला है और ये पैगाम का आखिरी जुमला बड़े सुनने वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी मांगी, इसाले सवाब भी किया। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं इस वक्त अपने मास को जन्नत की नहरों में गोताजनी करते हुए देख रहा, बैठे हुजूर मदीने में और देख जन्नत में रहे। अबू दाऊद में भी ये लफ्ज है, मुस्लिम में भी ये लफ्ज है, ये लफ्ज है लफी अनहारिल जन्ना यनगमिसु फिया। फरमाया मेरा माज इस वक्त जन्नत की नहरों। हुजूर क्यों, ये आपका मौजू है। फरमाया लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैना उम्मतिन लबसियतहुम, मेरे माज ने तौबा ऐसी की है, अगर ये तौबा मेरी सारी क़यामत तक आने वाली उम्मत में तकसीम कर दी जाए, उम्मत कम पड़ जाएगी, तौबा बढ़ जाएगी। ये होते हैं दिलों के राब्ते। तो अल्लाह ताला हमारी तौबा भी कबूल करे। हम आपके लिए भी दुआगो हैं, आपके लिए भी, आप भी हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआएं करें। इन पाक अय्याम का सदका अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल करे। आपके चैनल को भी, आपको भी, टीम को भी बरकतें दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बड़ा खूबसूरत तौबा के बारे में आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल जो है खूबसूरत बयान हमें जो है वो फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा करने की, अपने खालिक के आगे गिड़गिड़ा के इन अय्याम में, क्योंकि आखिरी इशरा चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें गिड़गिड़ा के अपने खालिक के हुजूर तौबा करने की हुजूर के सदके से तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए 110 न्यूज़।